All right. Hi, everyone. Good evening. Just a minute. ठीक है, आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ग्रेट। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं फॉर अदर्स टू ज्वाइन इन, फिर रिज्यूम करेंगे। All right, चलो, I think we have waited enough. Most of the students have joined in. बाकी जनता फिर धीरे धीरे ज्वाइन करती रहेगी. The instructions remain the same as I had given you in the last class. I will share the recording and I will share the notes. Now, as of now, you don't need to copy the notes. I will in fact not give you time to copy the notes. Theoretical chapter है, last lecture रहेगा हमारा इस chapter का, and in that given time frame we will try to complete it. Now last class में हम लोगों ने adsorption के concept के बारे में बात करी थी, and the second part of the chapter is about the concept called as colloids. Now what do I mean by colloids? उसके लिए एक background समझना, that when we are looking at a solution, depending upon the size of solute particles, we do a classification. We classify it into 3 types: suspension, colloid, and true solution. Now the classification is based on the size of the solute particles, right? So as you can see, suspension में काफी बड़ा size रहेगा, यहाँ पे range भी आपके लिए mentioned है. Colloids में it is somewhere in between, and true solids have the smallest size of solute particles. Now example simple सा है. When you are looking at something called as a suspension, it's like sand or mud in water. Sand particles, right, are large enough to have a surface, but at the same time they do settle down under the influence of gravity. इनका इतना large size रहता है. On the rightmost side,
when I'm talking about true solution, you have example something like NaCl in water. Now, when I'm talking about NaCl in water, observe karna, it's called true solution because the size of the particle is very, very small. Now, as a result, what we see is ये जो particles है Na plus ions, Cl minus ions, they will not have any surface as such. At the same time, they will be very, very small in size. Gravity का influence इन पे नहीं act करता है इतना strongly, and they keep on moving in the solution randomly. Like they don't settle down. ऐसा नहीं होगा कि आपने NaCl in पानी रखा and then after some time you come back and see कि पूरा का पूरा salt नीचे settle down कर गया. ऐसा नहीं होता है. Colloids are somewhere in between. Colloids have interesting properties from both suspension and true solutions in the following manner. Notice करना, जो particle के size है, वो somewhere in between है. That means उनके पास में surface भी है to show certain interesting properties, and इतना बड़ा भी size नहीं है कि gravity के effect में settle down कर जाए. The colloid particles, they keep on moving randomly inside the solution without settling down. ठीक है? So you have common examples of it, something like milk या फिर sulfur का sol. ठीक है? ये एक introduction है to colloids. Now, based on these properties, as in these descriptions, these definitions that I've mentioned, there are certain properties associated with these three types, right? ये properties कैसा है अपन एक एक करके समझ लेते हैं. Visibility के point of view से बात करेंगे. So suspensions are visible via naked eye. However, colloidal particles, they are not visible via naked eye. You need to, find certain measures, certain ways, say a microscope would do to actually look at the particles. In case of true solutions, the particles are so small, right, that even interaction with light becomes a difficult scenario. Okay, their visibility is very, very less by simple measures. फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो फिल्ट्रेशन के बारे में दो पार्ट्स में बात कर सकते हैं. एक नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं और एक स्पेशल फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं. व्हेन आई से स्पेशल फिल्टर पेपर, व्हाट डू आई मीन? आई मीन मेम्ब्रेन्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर? तो उस केस में एज वेल एज स्पेशल फिल्टर पेपर के केस में सस्पेंशंस का फिल्ट्रेशन हो जाता है. हाउएवर इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू तो colloidal particles pass कर जाते हैं. ठीक है? They are not filtered because small size रहता है इनका as compared to the pores of that normal tissue paper. But when I talk about membranes, like animal skin membrane या even plant skin membrane, right? That's like a special filter paper, or you can say filter sheet. उसके थ्रू ये colloid के particles pass नहीं कर पाते हैं. ठीक है? We say blood is a colloid, right? So blood cannot easily permeate through, say, skin. Okay? Only when there is a cut that happens, the blood is able to come out. ठीक है? तो यहाँ पर filtration possible है of colloids via special filter papers. In case of something like true solutions, neither of these work. The size of the particles is so small that they can pass through even normal filter paper as well as special filter paper. Then talking about their diffusion or settling, this is quite logical as per the size that we have mentioned of the particles. Nature वाला point यहाँ पर ध्यान में रखना. इसमें colloids को ध्यान से सुनना समझना, we categorize as a heterogeneous system. ठीक है? Colloids, they are heterogeneous in nature. They have a separate, we say, solution phase and a separate solute phase. Now, notice करना है यहाँ पर, while talking about solute and solution as in solvent phase, colloids के केस में हम लोग special terms use करेंगे, right? So the terms that we are going to come across are something in the following manner. You have solute को
कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मिल्क का एग्जाम्पल लिया, तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन या फैट के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज। सल्यूट की जगह उसको ये फैंसी नाम दे देते हैं। एंड डिस्पर्जन मीडियम इज द सॉल्वेंट। तो जैसे मिल्क में वाटर इज द सॉल्वेंट, उसके अंदर जो प्रोटीन एंड फैट के पार्टिकल्स रहेंगे जो कि कोलॉइडल डायमेंशंस में प्रेजेंट होते हैं, राइट, दे आर कॉल्ड एज डीपी, डिस्पर्स फेज। सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन मीडियम, राइट। जैसे कोई अगर सल्फर का कोलॉइड है या गोल्ड का कोलॉइड है, राइट, तो उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स, ठीक है, दे वुड बी इन दिस कोलॉइडल साइज एंड वाटर विल बी द डिस्पर्जन मीडियम, डीएम। ठीक है, नाउ वाटर और यू कैन से डिस्पर्जन मीडियम इज आल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फेज, whereas dispersed phase solute particles they are called as discontinuous phase। ठीक है, ये थोड़े बहुत नाम रहते हैं, थोड़े बहुत टर्म्स रहते हैं जो कि आपको इनके साथ में याद रखना रहता है। ठीक है, नाउ with this background, with this discussion, हाँ, सॉल्व मीन्स सोल्यूशन। कोलॉइड्स को हम लोग सॉल्व वर्ड भी यूज करके रेफर करते हैं। नाउ अब इसमें नोटिस करना an important concept which is role of surface in a colloidal solution. In one simple word, this role of surface can be summarized stability। तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में जो कोलॉइडल का पार्टिकल है, डीपी का पार्टिकल है, उसका सरफेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। किस तरीके से, हम लोग दो एग्जांपल्स देखते हैं एक एक करके। सो लेट्स से व्हेन आई एम लुकिंग एट मिल्क एज एन एग्जांपल, इसमें जैसे मैंने आपको बताया जो डीपी है वो क्या है, प्रोटीन पार्टिकल्स, फैट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड डीएम इज आर वाटर। नाउ इस केस में कैसा रहता है कि जो कोलॉइडल का पार्टिकल है उसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये डीएम के मॉलिक्यूल्स लेयर्स बना लेते हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा इसके ऊपर पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दोज पोलर ग्रुप्स the water molecules will be attracted because water is also a polar molecule, and yes, similar to hydration, ऐसे solvent के molecules की layers रहेंगी। Now these layers are going to act as protective layers. They protect colloidal particles from coagulating। ठीक है, जो colloidal के particles होंगे उनको ये coagulate होने से prevent करेंगे, राइट। दूध या मिल्क, इफ यू रिमेंबर, हम लोग उसका पनीर बना देते हैं, कैसे? कोएगुलेशन करके। दैट इज व्हाट दिस टर्म इज। व्हेन कोलॉइडल के पार्टिकल्स आपस में मर्ज करने लग जाते हैं, तो जैसे क्या होता है जब दूध से पनीर बनाया जाता है, तो व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लेमन डाल दिया या विनेगर डाल दिया और उसको हीट करा, तो उससे क्या होगा, ये जो वाटर की लेयर्स होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स है वो इनको अट्रैक्ट करने लगते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो क्या होगा, ये फैट का पार्टिकल, प्रोटीन का पार्टिकल दूसरे फैट या प्रोटीन के पार्टिकल के साथ में आके चिपकने लग जाता है, मर्ज करने लग जाता है, कोएगुलेट करने लग जाता है, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड एज पनीर। ठीक है, तो ये जो सरफेस है डीपी का, सरफेस है फैट मॉलिक्यूल का, इस पे जो पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, दे आर helping maintain that stability, preventing coagulation by attracting layers of water molecules around them। तो ये मैंने एक ऑर्गेनिक कोलॉइड का एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस किया। देयर आर इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स आल्सो। क्लासिक एग्जांपल लेना यहाँ पर, जैसे सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइड है। नाउ सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल सॉल्ट रहता है। ठीक है, तो इसके हम लोग कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स,
ठीक है, छोटे साइज के पार्टिकल्स इन डायमेंशंस के कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स हम लोग वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं विद एक्सेस ऑफ I- आयंस। तो इससे क्या होता है कि ये जो कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स रहते हैं ये इतने छोटे भी नहीं होते और इतने बड़े भी नहीं होते कि ये ट्रू सोल्यूशन या सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, जो छोटे कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स रहते हैं इनके पास में सरफेस रहती है। ठीक है, और उस सरफेस पर ये जो I- के आयन है, ठीक है, वी कीप I- आयंस इन एक्सेस डेलिबरेटली। तो ये I- के आयंस क्या होंगे, इनकी सरफेस पर अब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड ऐसा करने से ये I- के आयंस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे ओवर द सरफेस ऑफ दिस कोलॉइडल पार्टिकल एंड दे वुड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट और फॉर्मेशन ऑफ अ सस्पेंशन। ठीक है, कैसा मतलब, मैंने ऐसे सोल्यूशन में Ag प्लस आयन डाला, I- आयन डाला, राइट, एंड विग्रस शेकिंग भी करते रहते हैं साथ में। अगर विग्रस शेकिंग नहीं करेंगे तो फिर तो AgI का पूरा प्रेसिपिटेट ही बन जाएगा, बट हम लोग विग्रस शेकिंग भी करते रहते हैं साथ में। तो उससे क्या होता है, ये Ag और I मिलते हैं, मिलके छोटे से बड़ा साइज बनाते हैं एंड जब कोलॉइडल डायमेंशन में पहुंचने लगते हैं तो इनके पास में सरफेस आने लगती है और उस सरफेस पर I- के आयंस अब्जॉर्ब होने लगते हैं एंड because the I- ions were in excess. So these adsorb ions, as you can see, when the I- aggregate reaches colloidal size, then it develops a surface on which I- gets adsorbed. And this charged layer of I- it protects the colloidal particles. ठीक है, ये उनको और नहीं बड़ा होने देता, आपस में एक दूसरे की यू कैन से कोएगुलेशन करके, कोएगुलेशन नहीं होने देता, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं बिकॉज दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज की लेयर होती है। ठीक है, स्नेहल तुम्हारी तरफ से कुछ आई थिंक इशू होगा बिकॉज आई एम बीइंग लाउड एज यूजुअल। नाउ I- क्यों अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पर जो AgI का लैटिस है, ठीक है, AgI के लैटिस के ऊपर जो साइड्स रहती हैं उनमें I- का आयन फिट हो सकता है। ठीक है, so if we keep I- ions in excess, these I- ions can get absorbed। अगर मैं Ag प्लस एक्सेस में रखता, ठीक है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको, तो Ag प्लस भी आयंस अब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नोटिस करना, यहाँ पर अगर हम लोग विग्रस शेकिंग नहीं करते साथ में, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं या फिर विग्रस शेकिंग करी जाती है, अगर वो नहीं करते तो फिर ये पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट बना देते, सस्पेंशन बना देते, बड़े साइज के बन जाते। ठीक है, तो कीप देम इन स्मॉलर साइज, वी नीड टू डू दैट विग्रस शेकिंग and then allow these I- ions to get absorbed so that they can then act as a protective layer। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया सबको? Any doubts? Raise your hand. I'll unmute. You can ask question. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज वाटर। हाँ, आगे आएगा। ये जो विग्रस शेकिंग वाला पार्ट मैंने बताया है, इसको पेप्टाइजेशन बोला जाता है, टेक्निकल टर्म है इसका। वी विल कम टू इट अंडर द टॉपिक कॉल्ड एज मेथड्स टू फॉर्म कोलॉइड्स। ठीक है, वहां पे फिर से रिपीट करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर जो मेन फोकस करवाना चाह रहा था वो था रोल ऑफ सरफेस के ऊपर। ठीक है, नाउ अब दैट वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोलॉइड्स एंड देयर डेफिनेशन, ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स डिस्कस करेंगे। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, देयर आर सर्टेन methods of classification. Now, classification of colloids happens on the basis of physical state of dp and dm. Now, how does that happen? Based on the physical state of dp and dm, तो
ये आपके सामने जो टेबल है इसको अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है, रट्टा मारना है। लेफ्ट टू राइट भी रट्टा मारना है, राइट टू लेफ्ट भी रट्टा मारना है, ठीक है। देयर हैव बीन डायरेक्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, स्पेशली जेई मेंस, ठीक है, एडवांस में नहीं बट मेंस में, बिट्स में, सीईटी में, ठीक है, इनफैक्ट नीट में, सब में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टेबल के ऊपर, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे पूछ लेंगे, फॉग इज व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड, ठीक है, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट्स हैं उनके हिसाब से कोलॉइडल का नाम और उसके एग्जांपल्स आर मस्ट रिमेंबर, ठीक है, याद करना है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे 8 टाइप्स हैं, 9 टाइप नहीं है, ठीक है, बिकॉज गैस गैस का जो एक एग्जांपल होता है वो कोलॉइड नहीं कहलाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, दीज एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है, याद रखना। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आफ्टर नोटिसिंग दीज डिफरेंट टाइप्स, इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेना, दैट while going into details, while studying in depth, हमारा फोकस ना सॉलिड इन लिक्विड वाले कोलॉइड्स पर रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस बोल रहे हैं। सॉलिड डीपी रहेगा एंड लिक्विड डीएम रहेगा, दैट विल बी आवर मेन फोकस। देन नोटिस करना, जो ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें डीएम वाटर रहता है, they are also termed as aqua salts or hydrosols, ठीक है, that is also something which will be a main focus for us, ठीक है। Now after this first classification, let's look at the next classification of colloids that is done, but this time on the basis of interaction between DP and DM, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के इंटरेक्शन के ऊपर बेसिस यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन है लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स का, ठीक है। लायोफोबिक वर्ड का मीनिंग होगा, लायो स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड फोबिक स्टैंड्स फॉर लाइक यू कैन से हेट या फियर। फिलिक, यहाँ पे लायोफिलिक नोटिस करना, सॉल्वेंट एंड फिलिक मींस अट्रैक्टेड या लविंग। तो that is what the classification is in case of lyophobic colloids. DP DM don't like each other, they don't interact with each other much, ठीक है। generally these are inorganic colloids, जैसे मैंने आपको ये AgI का एग्जांपल दिया कि AgI जो है वो वाटर में काइंड ऑफ insoluble रहता है, ठीक है। water molecules don't like interacting with AgI. in case of लायोफिलिक, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सो मुझे नेम्स लिखा है AlCOSOLS एंड बेंजोसॉल्स, सो सारे नेम्स जरूरी है, मतलब याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। एक्वासॉल्स पे एंड उसके नीचे थर्ड लाइन में, हाँ, दिस इज ऑल्सो अ नेम गिवन टू in case the DM is alcohols and benzene, तो इस केस में बेंजोसॉल नाम रख देते हैं। या मतलब नेम्स कैसे बनते हैं वो भी क्वेश्चन में आएगा। अरे बाबा, जो आएगा इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना, फालतू क्यों पढ़ाऊंगा, कैसा डाउट है? सॉरी सर। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, इन केस ऑफ लायोफिलिक जो है, as per the name, these are typically organic colloids, जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया, where the DP and DM interact with each other, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोटीन का जो DP था, इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करके रखते, ठीक है, इससे अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के आपके कोलॉइड्स रहेंगे, एंड अगेन ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, याद रखना। एग्जांपल्स
के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जहां पर क्वेश्चन विल बी सच अ नेचर का क्वेश्चन जहां पे आपको लाइक एग्जांपल देखकर एक्सपेक्टेड होगा कि आप उसको बता पाओ कि ये लायोफोबिक कोलॉइड है कि लायोफिलिक कोलॉइड है। तो जैसे मैंने बताया, लायोफोबिक कोलॉइड्स टिपिकली इनऑर्गेनिक रहते हैं, ठीक है। तो उसमें मेटल्स के कोलॉइड्स, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स के, मेटल्स के सल्फाइड्स के, ठीक है, दीज आर टिपिकल लायोफोबिक कोलॉइड्स, इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, लाइक जैसे मिल्क का एग्जांपल दिया, या उसके अलावा जेलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, एक एल्ब्यूमिन हो गया, ये सब आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स रहते हैं। नाउ आफ्टर नोटिसिंग दीज टाइप्स, इनके प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस समझना एक एक करके बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। सबसे पहले यहां पर नोटिस करना काफी सारे पॉइंट्स हैं between lyophobic and lyophilic colloids. Now, some points are something which you will be able to understand ऊपर से easily आराम से, ठीक है। Some points are going to be covered later, ठीक है। मैं अभी आगे जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा उनमें फिर मैं उन पे एलैबोरेट करता जाऊंगा। एंड एक दो पॉइंट कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जिनको आपको एक तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन becomes a little difficult unless we get into a lot of details, so we don't require to actually get into that much detail। वो आप बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नोटिस करेंगे, एक एक करके मैं पॉइंट्स लूंगा, थोड़ा जिगजैग मैनर में लूंगा। पहले बात करते हैं प्रेपरेशन की एंड उसके साथ में रिलेटेड स्टेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी की। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं, right, they are not something which can be prepared easily by simple mixing, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपने डीपी लिया, डीएम लिया, मिला दिया, स्टर करा और कोलॉइड तैयार। दैट इज नॉट हाउ लायोफोबिक कोलॉइड्स आर प्रिपेयर्ड। इनको प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल मेथड्स लगते हैं जो कि चैप्टर में आगे डिटेल में एक एक करके डिस्कस करे जाएंगे। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर एक्चुअली इजी टू मेक, सल्यूट सॉल्वेंट अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क था, राइट। तो मिल्क को अगर आप एक सेंट्रीफ्यूज में डाल दोगे तो उससे एक्चुअली आप कोलॉइड डिस्ट्रॉय कर देते हो, क्योंकि आप सॉलिड वाला पार्ट और लिक्विड वाला पार्ट अलग अलग कर देते हो सेंट्रीफ्यूज में। बट आप सेंट्रीफ्यूज को रोक दो एंड वापस से सिंपल स्टरिंग करो तो आपका मिल्क यानी कि आपका लायोफिलिक कोलॉइड फिर से तैयार हो जाता है, ठीक है। Hence the term use reversibility and irreversibility as well. Lyophilic are called as reversible, whereas lyophobic are called as irreversible। अगर आपने किसी तरीके से लायोफोबिक कोलॉइड को कोएगुलेट कर दिया तो उसको ऐसा नहीं है कि सिंपल स्टरिंग करके वापस से जनरेट करा जा सकता है, ठीक है। AgI का अगर मान लो आपने प्रेसिपिटेट बना दिया तो ऐसा नहीं होगा कि फिर से सिंपल स्टरिंग करी और AgI का कोलॉइड तैयार हो जाए। नाउ स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करना, लायोफोबिक के लिए बोला जा रहा है लेस स्टेबल एंड लायोफिलिक के लिए बोला जा रहा है मोर स्टेबल। नाउ व्हाट इज द स्टेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, उसके लिए पॉइंट नंबर 9 नोटिस करना। कोलॉइड्स को स्टेबल बोला जाता है व्हेन दे रिमेन इन कोलॉइडल डायमेंशंस। इफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स merge with each other, coagulate with each other, precipitate, then we say the colloid is destroyed. So in case of lyophilic colloid, हम लोग small concentration में अगर electrolytes डाल देते हैं तो colloid easily coagulate कर जाता है। Lyophilic में जो relatively speaking concentration of electrolytes required होता है वो ज्यादा होता है। Therefore, we say that lyophilic colloids are more stable, ठीक है। Then fourth and fifth point notice करना, as I said, these are more of
ratta based points. Now in case of लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से बोला जा रहा है. लायोफोबिक में पहले पढ़ लो. जो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन है ऑफ द कोलॉइड, दे आर प्रिटी मच सेम और सिमिलर एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट. बट इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, viscosity is relatively higher and surface tension is relatively lower than that of just the solvent. ठीक है, तो जैसे यहां पर viscosity, surface tension in case of lyophobic is almost the same as solvent, but in case of lyophilic colloids, viscosity is higher in case of solvent, in case of colloid as compared to solvent, but surface tension is lower. ठीक है. अब इनके reasons जो है, they are actually associated with how the molecules interact with each other, how the dp and dm particles interact with each other and how that impacts viscosity and surface tension. अब आई एम श्योर आप लोगों ने ये टर्म्स फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लिए होंगे, पढ़ रखे होंगे, बट उनका मॉलिक्यूलर लेवल का डिस्कशन नहीं करा होगा. ठीक है, यू वुड हैव अंडरस्टूड कि हाँ, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी शोन बाय लिक्विड्स, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी शोन बाय लिक्विड्स या फ्लूइड्स. ठीक है, viscosity is more like friction between molecules, like तो वो molecule का interaction is what results in viscosity, and उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है आपने, तो we are not getting in there a lot of detail. ये आप as a point ध्यान में रखना. ठीक है. Then talking about point number 6, which is about hydration or solvation. तो ये definition में ही था जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा कि लायोफोबिक में there is less interaction between solute solvent like DP-DM में. यहाँ पर there is high interaction between solute solvent between DP and DM. In fact, this hydration is what is responsible for formation of layers around the DP, which keeps the colloidal particles stable, does not let them coagulate. Charge on colloidal particles के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लायोफोबिक कोलॉइड्स है, जो AgAgi का मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, उसमें we saw that negative charge ions get absorbed या positive charge ions can get absorbed, which act as a protective layer. ठीक है, they are the ones responsible for preventing of coagulation. ठीक है, तो लायोफोबिक कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. लायोफिलिक कोलॉइड जो है, लाइक मिल्क वाला जो एग्जांपल दिया, उसमें charge is not a necessary criteria. There can be charge, there cannot be a charge. ठीक है. Now, visibility के point of view से बात करेंगे अगर हम, and Tyndall effect का जो example रहेगा, ये दोनों as well as ये तीसरा point जो है, migration in the electric field, migration of particles in the electric field, ये तीनों points को हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे while talking about the properties associated with colloids. ठीक है. हाँ, मिल्क पाउडर कैसे बनाते हैं अनन्या? मिल्क पाउडर का बनाने का प्रोसेस वैसा ही रहता है. मिल्क से ही पहले उसको पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं, फिर बाद में वो पाउडर को पानी में मिला देते हैं, तो मिल्क पाउडर भी तैयार हो जाता है. ठीक है. नाउ coming back to classification, then एक और classification यहाँ पे notice करना. This is also an important classification. हमने दो classifications पढ़ लिए हैं. एक was basis the physical state. The other we are talking about classification based on interaction between DP-DM, and this is the third classification. This is the charge. Okay. Now, as I said, examples are crucial. Example ध्यान में रखना इनके. So there are two types: positively charged colloids and negatively charged colloids. Now, positively charged colloids में कैसा है?
नोटिस करना बनाने का तरीका कैसा है। लायोफोबिक कोलॉइड्स में हम लोग आयंस मिलाते हैं, जिससे आयंस मर्ज होके टिपिकली एक प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने लगता है। एंड उसमें जो एक्सेस वाला आयन होता है वो डीपी की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड चार्ज की प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे नोटिस करना AgNO3 और Ki को मिलाऊंगा तो AgI का मेरा पार्टिकल्स मर्ज करने लगेंगे, कोलॉइडल डायमेंशंस में आने लगेंगे। एंड इफ वी कीप Ag प्लस आयंस इन एक्सेस तो Ag प्लस आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बन जाएगा। अगर मैंने सेम प्रोसेस में Ki को एक्सेस में रखा होता तो मेरे Ki के I माइनस आयंस सरफेस पर एब्जॉर्ब होने लगेंगे एंड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड तैयार हो जाएगा। नाउ ये एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बोला आर मस्ट रिमेंबर। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के कोलॉइड्स दे आर टिपिकली पॉजिटिव कोलॉइड्स। मेटल्स के कोलॉइड, मेटल सल्फाइड्स के कोलॉइड दे आर टिपिकली नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स मस्ट रिमेंबर है। SnO2 एम्फोटेरिक रहता है, तो अगर एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये पॉजिटिव कोलाइड बनाता है, बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये नेगेटिव कोलाइड बनाता है। ठीक है, देन देयर आर दीज अदर एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड। इसमें एक ये ब्लड का एग्जांपल भी ध्यान में रख लेना। ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड formed by the carbonate bicarbonate ions। ठीक है, हाँ राइट गिरीश, ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। ठीक है, एग्जांपल्स आर मस्ट रिमेंबर। नाउ नहीं, ब्लड इज नॉट पॉजिटिव कोलॉइड। hemoglobin is positive, it has got iron ions। ब्लड ओवरऑल जैसे इनफैक्ट होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक बोला भी था, या शायद नहीं बोला था, इस क्लास में नहीं बोला था। ब्लड जो है नेगेटिव कोलॉइड होता है, तो आप जब जैसे कट लग जाता है तो उसके ऊपर डिटॉल या सैवलॉन लगाते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, टिपिकली आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के आयंस प्रेजेंट रहते हैं, तो दे हेल्प इन कोएगुलेशन। ठीक है, नाउ नोटिस करना अब another classification of colloids which is on the basis of the size of DP या type of DP I would say, कि जो dispersed phase है colloidal particles जो रहते हैं उनके ऊपर बेस्ड यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम टू रीड वंस, एक बार आप रीड कर लो एंड देन आई विल डिस्कस। काफी सारा टेक्स्ट है, टेक योर टाइम, रीड एंड देन विल गो वन बाय वन।
ऑलराइट, पढ़ा सबने? सर 1 मिनट। वो नैन आगे ऐसे कोलॉइड्स के एग्जांपल्स में आएगा, कोलॉइड्स इन रियल लाइफ, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स आगे भी डिस्कस होंगे, उनमें वापस आ जाएगा। हाँ बोलो। सर हाँ सर एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है कि when a chopstick is dipped in ink, the surface is the ink goes deeper into stick due to absorption। और उसके बाद एक स्टेटमेंट है on breaking the chopstick it is found to be white from inside। तो फिर जब चॉक को इंक में डालते तो इंक डीप जाती या नहीं? इंक नहीं जा रही है, वाटर जा रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, इंक के मॉलिक्यूल सरफेस पे है। ओके सर। नाउ कमिंग बैक, हाँ अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स यहां से आपको समझ में आएगा किस तरीके से है, दैट जो कोलॉइडल का पार्टिकल है वो खुद छोटे छोटे एटम्स के एग्रीगेशन से, मतलब उनके कलेक्शन से बना हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर में नहीं, वो यूनिट 15 मतलब वो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स वाला, आई थिंक वो उसको रेफर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यूनिट 15 मींस दैट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन यहाँ पे नोटिस करना, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स रहेंगे उसका खुद का साइज, उसके खुद का डायमेंशंस, ठीक है, आर लार्ज इनफ टू बी इन कोलॉइडल रेंज, ठीक है। जैसे स्टार्च हो गए, सेल्यूलोस हो गए, इनके जो पार्टिकल्स का साइज है दैट इटसेल्फ इज लार्ज इनफ, ठीक है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, दिस इज द थर्ड टाइप। यहां पर क्या बोला जा रहा है इसमें, दैट यू कैन थिंक ऑफ इट समथिंग विच इज मोर लाइक कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के जैसा है, ठीक है। अभी मैं जब इसके डिटेल्स में बात करूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स साथ में भी आते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स भी रहते हैं, दैट इज व्हाट एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर। किस तरीके से यहाँ पे नोटिस करना, क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल नोटिस करना। पहले एग्जाम्पल के बारे में क्या बोला जा रहा है, दीज आर समथिंग लाइक, जैसे सोप्स या डिटर्जेंट में मिलने वाला सोडियम स्टेरेट आयन, तो सोडियम स्टेरेट आयन में कैसा है, सोडियम कटायन है और ये बड़ा सा स्टेरेट अनायन होता है, ठीक है। तो जो अनायन है वो खुद भी कैसा है, इट इज कंसिस्टेंट ऑफ अ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल एंड अ हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक एज इन ये नॉन पोलर पार्ट रहता है, और जो ये हेड है, ठीक है, इसको हाइड्रोफिलिक या पोलर पार्ट भी कहते हैं। अब अगर इसको, ठीक है, नोटिस करना कैसे बोला जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशंस में डाला जाए तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और किस तरीके से प्रेजेंट रहता है वो भी यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। डायग्राम भी नोटिस करना, ये डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। जो कटायन है Na+, वो तो पानी में चला गया, पानी के मॉलिक्यूल से सराउंड हो गया, बट ये जो अनायन है, ये अनायन सरफेस पे रहता है, किस तरीके से, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो ये हेड वाला पार्ट है, पोलर पार्ट है, वो पानी में इमर्ज रहता है, वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है, बट जो टेल वाला पार्ट है विच इज हाइड्रोफोबिक, वो ऐसे ऊपर की साइड अबव द सरफेस ऑफ वाटर रहना पसंद करता है। दिस इज व्हेन लो कॉन्सेंट्रेशंस में।
अब हम कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो a special phenomena happens, a special phenomena occurs, which is formation of this associated colloid. Now notice करना, ये जो associated colloid है इसको micelle भी कहते हैं. इसका formation is like a win-win situation. किस तरीके से win-win? Notice करना इसके shape को देखकर, इसके formation को देखकर. जो ये हमारा आयन था, स्टीरेट आयन, इसका जो टेल है उसको वाटर के साथ इंटरैक्ट करना पसंद नहीं है, हाइड्रोफोबिक है वो. नाउ जब ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये माइसेल बना देते हैं, तो यू कैन सी जो नॉन पोलर वाले पार्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं. इनके लिए विन हो गया क्योंकि इनको वाटर नहीं पसंद है, इनको दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही पसंद है. एंड देन ये हाइड्रोफिलिक वाला हेड जो है वो नोटिस करना, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड के बारे में बात कर रहा हूं, इसके लिए भी विन हो गया. इसको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करना पसंद है क्योंकि ये खुद भी पोलर है, राइट. तो इस अरेंजमेंट में एज आई सेड विन विन सिचुएशन आ जाती है. द अनायंस दे आर पुल्ड इन द बल्क, they form such spherical aggregates called micelles or associated colloids with hydrocarbon chain pointing towards the center and the heads pointing outwards towards the sphere. समझ में आया ये? Now how is this better setup than the left? ये lower concentrations पर this is the setup, higher concentrations पर this is the better setup. कैसे? नॉन पोलर को आपस में इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है, पोलर को पोलर के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ पोलर को ही पोलर के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा था. नॉन पोलर वाले कि ठीक है भैया हमको तो पानी के बाहर ही निकाल दो, वी डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद एनीवन. यहाँ पे उनको भी इंटरैक्ट करने का मौका मिल गया. ठीक है. नाउ अब ये जो माइसेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इसके साथ में एसोसिएटेड दो टर्म्स है कॉल्ड एज सीएमसी, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, एंड क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है. इन दोनों टेम्परेचर्स या इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझना और ध्यान देना. CMC called as critical micelle concentration, this is related to the above explanation. कैसा बताया मैंने, लो कॉन्सेंट्रेशन पे इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे. तो ये जो चेंज होता है एक्चुअली ये एक थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन के अराउंड होता है, विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, राइट. तो यही डेफिनेशन है. Critical micelle concentration is the minimum concentration required for formation of micelles. Now, experimentally, when this CMC is found, तो उसमें क्या होता है कि जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज या सिग्नल वर्ड यहाँ पे y एक्सिस पे लिखा हुआ है, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं सोल्यूशन की वो अब्रप्टली चेंज हो जाती हैं when this transition happens, when this micellization happens, right. कैसे? यहां पर आप एक एक करके ऑब्जर्व करना. जैसे फॉर एग्जांपल ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर, इफ यू रिमेंबर लिक्विड सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू ICRT. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. बट CMC के बाद में क्या हो रहा है, आप सब्सटेंस को डाल रहे हो सॉल्यूशन में, बट उससे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं बढ़ रहे. वो पार्टिकल्स क्या है, आपस में कोएगुलेट ही कर रहे हैं, आपस में चिपके ही जा रहे हैं. तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है या हार्डली कुछ बढ़ता है. ठीक है. टर्बिडिटी इज रिलेटेड टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट. यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशंस में कैसा रह रहा है,
वो जो इलेक्ट्रोलाइट अपन ने बात करे वो कैसे है, ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर है प्रेजेंट, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो लाइक काफी ट्रांसपेरेंट सा है, उसमें ऐसे फॉगीनेस कम है। बट सीएमसी के बियॉन्ड क्या हो रहा है, सीएमसी के बियॉन्ड अब वो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, वो जो फैटी एसिड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आने लग गए हैं, तो उसकी वजह से ओपेकनेस बढ़ गई है, टर्बिडिटी इन द सोल्यूशन बढ़ गई है, ठीक है, राइट। तो ये इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि अब्रप्टली चेंज होती हैं अराउंड सीएमसी, ठीक है। Craft temperature is also an important term associated with this process of micellization. The micelle formation happens above a temperature only called as Craft temperature. Logic क्या होता है इसमें, बेसिकली टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि कम से कम solubility of that salt is more than the CMC. अगर solubility ही CMC से कम होगी, right, which is the case below critical below Craft temperature, तो फिर माइसेलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। मान लो आपने ये सॉल्ट जो है, ठीक है, उसको डाला पानी के अंदर, राइट, अब वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लाइक इतना कम है, सॉल्युबिलिटी इतनी कम है कि जो सॉल्ट है उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपीयर ही नहीं हो रहा है कि कम से कम सीएमसी रीच कर पाए। तो क्राफ्ट टेम्परेचर इज बेसिकली दैट टेम्परेचर which talks about कि हाँ above this temperature the solubility will be more than CMC so that micellization can occur, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं जो कि आपको इस फिनोमेना के साथ में याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन था आपका, चौथा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी, ठीक है। सो आफ्टर दीज क्लासिफिकेशंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद कोलॉइड्स, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक बार आप इनको रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्विकली रीड देम।
ऑल राइट, रीड करा इसमें हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कोलॉइड को ऐसे हेट्रोजीनियस मानते हैं विद टू डिफरेंट फेजेस, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फेज। फिल्टरेबिलिटी, इसके बारे में अपन ने बात किया था, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास हो जाता है, फाइन मेम्ब्रेन्स लगते हैं। अब उसमें एक फाइन मेम्ब्रेन्स में एक स्पेशल फिल्टर पेपर बनाने का ये एक लाइक पैराग्राफ है कि अगर लैब के अंदर मुझे एक स्पेशल फिल्टर पेपर बनाना है तो उसके लिए क्या करा जाए, ठीक है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो और उसको एक स्पेशल सोल्यूशन में डिप करके रखो। क्या स्पेशल सोल्यूशन है, इसको नाम दिया कोलॉइडॉन सोल्यूशन, विच इज अ 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर जो साइज है वो इनका कम हो जाएगा एंड वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया, एज कंपेयर टू अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, कोलॉइडल सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, राइट। आई का वैल्यू मच लेस देन 1 रहेगा, जैसे अपन ने ऊपर वो एसोसिएटेड कोलॉइड का देखा था कि जब तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन की तरह है, तब तक कैसा है, लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। बट जब कोलॉइड बन जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स बन जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकम लो एज कंपेयर टू अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, विच इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। एज अ बैकग्राउंड टू दिस, अपन ने डिस्कस किया था दैट कोलॉइड्स जो है उनकी विजिबिलिटी नेकेड आई के थ्रू नहीं रहती है, बट माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखते हैं, ठीक है। नाउ the reason why we are able to see colloidal particles under microscope is that they are able to, उनका साइज इतना छोटा नहीं है ट्रू सोल्यूशन जितना कि लाइट के साथ में इंटरेक्ट ही ना करे, ठीक है, कि लाइट के पार्टिकल्स विदाउट इंटरेक्टिंग विद द सोल्यूट पार्टिकल्स मूव कर जाए। इतना बड़ा है कोलॉइडल का साइज, पार्टिकल का साइज, दैट लाइट गेट्स स्कैटर्ड by the colloidal dimension particles, and that scattered light is what we see and understand the colloidal particles. इस phenomena को कहते हैं Tyndall effect, ठीक है। Now this is a very common phenomena that is something we come across or see almost every day in our lives, ठीक है। जब सनराइज सनसेट हो रहा होता है तब भी Tyndall effect का एक रोल रहता है, बिकॉज जो लाइट आ रही होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स से स्कैटर हो रही होती है, ठीक है, कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स से, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल लैब सेटअप के अंदर टिंडल इफेक्ट दिखाया जा रहा है। कैसा? एक लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्ग बीम, एक बार ट्रू सोल्यूशन के थ्रू पास कराया एंड एक बार कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू पास कराया। ट्रू सोल्यूशन में कैसा हो रहा है, यहाँ पे जैसे नोटिस किया अपन ने, like you can't see the beam of light. Why? Because the size of the particles is very small. They are not interacting with the light. They are not able to scatter it. ठीक है। कोलॉइडल डायमेंशंस के पार्टिकल जो है कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये जो अपन ने बीम ऑफ लाइट थ्रो करी, ये इसका पाथ क्लियरली दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है? बिकॉज जो लाइट के फोटॉन्स हैं वो कोलॉइडल साइज पार्टिकल से स्कैटर हो सकते हैं। इनका साइज इतना बड़ा है कि लाइट आई, photons आए and then they get scattered, ठीक है, and those scattered photons are what is helping us see this path of light. Now some details about Tyndall effect, यहाँ पे नोटिस करना, Tyndall effect दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। एक तो जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा that size of particle shouldn't be very small, it should be of colloidal dimensions ताकि Tyndall effect observe हो सके। However, notice करना यहाँ पर भी that lyophobic और lyophilic colloids में what we see is lyophobic colloids का Tyndall effect काफी अच्छा, काफी well defined रहता है as compared to lyophilic colloids का। तो एक और एस्पेक्ट समझ में आता है that Tyndall effect
also depends on the difference of refractive index between DP and DM. In case of lyophobic colloid, there is a significant difference between the refractive index of DP and DM. But in case of lyophilic colloids, the DP and DM का refractive index is quite similar. उनके बीच में difference काफी small होता है, and as a result जो Tyndall effect रहता है वो काफी weak रहता है. ठीक है. Now, continuing in the optical properties only, there is an aspect of color associated with colloids. Some colloids do show color, some colloids don't show color. However, it is important for you to know and understand that the color shown by colloidal particles is actually dependent on the size of particles as well. तो जैसे ये क्लासिक एग्जांपल डेफिनेटली आपको याद रखना है गोल्ड सॉल का, गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल्स का, कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता है कलर का वेरिएशन कैसा रहता है. तो जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्स रहते हैं, ठीक है, ये आगे चैप्टर में यूज होता है एक दो जगह और, इसलिए आपको एग्जांपल डेफिनेटली ध्यान में रखना है. फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्स जो रहते हैं दे आर रेड इन कलर, एंड जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जाता है गोल्ड सॉल्ट्स का कलर भी चेंज होता जाता है, रेड से पर्पल, ब्लू एंड देन इवेंचुअली गोल्डन की तरफ. ठीक है, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना रहेगा. नाउ आफ्टर दीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वी टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन. ठीक है, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है. एक बार खुद से पैराग्राफ रीड करो, देन आई विल एक्सप्लेन. सर वो क्या था, जैसे साइज इंक्रीज होता है रेड टू वायलेट जाता है ना? करेक्ट. ऑल राइट, रीड करा यहाँ पर. मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है यहाँ पर कोलॉइड्स की? इन वेरी सिंपल टर्म्स दैट
जो ये कोलॉइडल के पार्टिकल्स रहते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, zigzag मोशन में प्रेजेंट रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन. नाउ दिस ब्राउनियन मोशन शोन बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स is also dependent on couple of factors. क्या क्या फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है. साइज ऑफ पार्टिकल अगर हम लोग कम कर देते हैं तो भी ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है. विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ डीएम जो है वो कम कर देते हैं तो भी ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है. दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच ब्राउनियन मोशन डिपेंड्स. ठीक है, होता क्यों है ये ब्राउनियन मोशन? बेसिकली जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन्स होते रहते हैं. ठीक है, कंटिन्यूअस इंपैक्ट होते रहते हैं बिटवीन द डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स. दैट इज व्हाट लीड्स टू दिस ब्राउनियन मोशन. दे डू नॉट लेट द डीएम सॉरी डीपी सेटल डाउन. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नोटिस करना है यहाँ पर, shown by colloidal particles. So this is especially in the context of colloidal particles which have charge, either positive charge or negative charge. Now ये जो charged colloidal particles रहते हैं इनकी सरफेस के ऊपर जो adsorbed ions होते हैं उस चार्ज लेयर को कहते हैं फर्स्ट लेयर या फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज. नाउ ये जो फर्स्ट लेयर है, फिक्स्ड लेयर ऑफ चार्ज है, ये अपने अराउंड ऑपोजिट चार्ज के आयंस को अट्रैक्ट करती है एंड उससे सेकेंड लेयर ऑफ चार्ज भी प्रोड्यूस होता है, भी फॉर्म होता है, which is called as the diffused layer or the second layer of charge. Now together this double layer of charge is called as Helmholtz electrical double layer. ठीक है, and between these two opposite layer of charges there is a potential difference that gets created. That potential difference is called as zeta potential or electrokinetic potential. Now greater that potential, greater is the stability associated with the colloid. ठीक है, हाँ नहीं, ये पहली लेयर ऑफ चार्ज रहता है, फिक्स्ड लेयर रहती है, ये एडसॉर्ब्ड आयंस की रहती है, तो उसके अराउंड एक डिफ्यूज लेयर फॉर्म होती है, सेकंड लेयर. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहां पर भी आपने ये हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. ठीक है, सो दैट इज द सेम नेम, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, वहां पे भी आपने सुना होगा. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, कपल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज वगैरह ट्राई करोगे, बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी कोलॉइड्स की एक एक करके, एंड उसी में एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, विच इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन. ठीक है, नाउ होता क्या है कोएगुलेशन? एक बार ये तीनों बुलेट पॉइंट्स एक एक करके रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा.
ऑल राइट, रीड करा। नाउ क्या कह रहा है एक एक करके पॉइंट। जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ ये स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहना जरूरी रहता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। व्हाई? बिकॉज वो जो स्मॉल अमाउंट का आयंस रहता है वो इन कोलॉइड्स के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होकर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है। बट अगर इन्हीं में मैंने लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस में, इफ आई पुट colloids sorry electrolytes, then what happens is that those ions interact with the opposite charged ions and remove these protective layer, neutralize this protective layer. As a result, जब ये protective layer चली गई तो जो colloidal particles होते हैं, neutral colloidal particles होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ में merge करने लगेंगे, aggregate करने लगेंगे, precipitate form कर जाएंगे, and this is what is called as coagulation, this process of aggregation of colloidal particles. Now कई बार एक फैंसी टर्म फ्लोक्यूलेशन भी यूज कर लेते हैं उनके साथ में, which is basically coagulation happening when you add small quantities of electrolytes only, ताकि अगर आप vigorous shaking करो तो फिर से you can get a colloid back. However, when higher concentration में आपने electrolytes यूज कर लिए and in that case वापस से simple vigorous shaking would not return you the colloid back, वो precipitate बन जाता है, ठीक है। Now coagulation कैसे कैसे कराया जा सकता है? There are many ways to do it. हाँ बोलो। सर फ्लोकुलेशन में लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बट लो कंसंट्रेशन तो होने चाहिए ना, मतलब कोलाइड फॉर्म होने के लिए, तो फिर हाँ, एग्रीगेट कैसे होता है? तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन के आजू बाजू में ही अगर हम लोग चल रहे हैं, मतलब इट इज समथिंग वेयर लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है बट हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, तो उससे ओके प्रेसिपिटेशन हो सकता है, बट इट इज नॉट अ मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लाइक यू कैन, जैसे होता है ना, सिर्फ दवाइयों में होता है शेक वेल बिफोर यूज लिखा होता है, हाँ ठीक है, तो वो शेक वेल बिफोर यूज क्या होता है, उसमें फ्लोक्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, मतलब कोलॉइड्स के फॉर्म में रहती है वो मेडिसिन, स्पेशली जो सिरप्स वगैरह रहते हैं बच्चों के, तो उनको बोल देते हैं कि ठीक है हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सेस में कोलॉइड्स डाले होते हैं, प्रेजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उनको विग्रेसली शेक करोगे तो वापस से कोलोइडल डायमेंशंस में आ जाएगा। बट अगर वही चीज ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं। ओके सर फाइन। नाउ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन नोटिस करना यहाँ पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड हुआ विच इज लाइक, ठीक है, समथिंग मैं समझा दूंगा आपको अभी डिटेल में। बाकी जो सिंपल मेथड है जो मैंने बताया, कोएगुलेशन कैसे करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दो, एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, तो वो क्या करेंगे, वो जो मैंने ऊपर पूरा एस्पेक्ट बताया, ठीक है, कोएगुलेशन का। नाउ ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक फैंसी सा नाम है, ठीक है, क्या है ये, इसको ध्यान से नोटिस करना। यहाँ पर एक यू शेप ट्यूब ले लिया, उसके अंदर हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब उस कोलॉइडल सोल्यूशन के दोनों एंड्स पर हमने इलेक्ट्रोड लगा दी, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। नाउ अब अगर मैं नोटिस करूंगा तो ये जो चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ मूव करते जाएंगे, एंड वहां पर पहुंचने के बाद में वंस दे रीच देयर दे लूज देयर चार्ज, एंड अपॉन लूजिंग देयर चार्ज दे अगेन अंडरगो कोएगुलेशन, ठीक है। सो दिस मूवमेंट of colloidal particles under an applied electric potential, this is called as electrophoresis. ये मूव करके वहां पर एनोड पे या ऑपोजिट चार्ज प्लेट पे पहुंच गए, चार्ज लूज कर दिया, कोएगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है। नाउ इसी के साथ में एक और फैंसी वर्ड यूज करा जाता है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। क्या है इलेक्ट्रोओस्मोसिस? बेसिकली ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसमें यहाँ पर बीच में एक SPM लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग यहां पर भी C1 कॉन्सेंट्रेशन था, यहां पर भी C1 कॉन्सेंट्रेशन था, किसका? कोलॉइड का, ठीक है, दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन था। अब फिर आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इस साइड के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो तो कोएगुलेट कर गए,
और यहाँ के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो ये एसपीएम को पास नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन दिस विल बी मोर देन इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा होने पर क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेयर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। solvent के particles they start to move from this low concentration to high Low concentration. to high. This is what is called as electroosmosis. ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या होती हैं इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोosmosis। ठीक है, नाउ नोटिस करना, ये जो कोएगुलेशन का एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किया, इसको न्यूमेरिकली भी डिस्क्राइब करा जाता है, क्वांटिफाई करा जाता है in terms of something called as coagulation value or flocculation value. Now what is this coagulation value or flocculation value? Simple definition है, 1 लीटर कोलॉइड लेना है, उसमें कितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट लगेंगे टू कोएगुलेट, दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्युलेशन वैल्यू। नाउ जितना ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगा मतलब उतना ज्यादा मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट का लग रहा है, मतलब कोएगुलेट करने की पावर उतनी कम है। ठीक है, कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी तो उसके कम मिलीमोल्स लगेंगे ना कोएगुलेट करने के लिए, उसका कोएगुलेशन वैल्यू कम रहेगा। सो इफ आई कंपेयर कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ड ऑन सर्टेन सब्जेक्टिव फैक्टर्स, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट will have more coagulating power than weak electrolyte because of the number of ions that they can give. Amongst strong electrolyte, अगर मुझे comparison करना है तो there is a rule that comes in handy for discussion called as Hardy-Schulze rule. Now what this Hardy-Schulze rule says in simple terms is that valency matters. Greater the valency, greater the charge of coagulating ion, greater is its power to cause coagulation or precipitation. तो यहाँ पर मान लो कि आपके पास में कोई पॉजिटिव कोलॉइड है, ठीक है, और इसको अपन को एक कोएगुलेट करना है, तो कोएगुलेट करने के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। नाउ इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन मैटर करेगा, कटायन या अनायन? अगर पॉजिटिव कोलॉइड है तो अनायन मैटर करेगा। तो लेट्स से मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डाले और इनके अनायंस के चार्ज कुछ इस तरीके से हैं, तो अकॉर्डिंग टू Hardy-Schulze rule द कोएगुलेटिंग पावर विल बी greater with the one that has the greater charge on the ion, and hence it will have a lesser coagulation value. ठीक है, अभी instead of let's say negative सॉल है, पॉजिटिव सॉल की जगह नेगेटिव सॉल है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कटायन मैटर करेगा। ठीक है, तो ये जो सेम इलेक्ट्रोलाइट मैंने ऊपर यूज करे थे उन्हीं का मैंने यूज करा है, बट दिस टाइम कटायन का चार्ज वुड मैटर, and greater the charge of cation, greater will be the coagulating power, lesser will be the coagulation value. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. All right. Basis this कुछ 3-4 क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो. Let me just rub the answers away. Give me 1 minute. ठीक है, इसमें जो मैंने ऊपर कुछ कुछ एग्जांपल्स बताए थे उनका भी यूज आएगा. हाँ, ये रहे. ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चंस के आंसर्स चैट में लिख के रखो. We'll discuss in 5 minutes.
ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स. नाउ सम ऑफ यू माइट बी एबल टू गिव द आंसर्स, some might not be because it requires the knowledge of the anions and cations. ठीक है, so यहाँ पर observe करना, these are the answers and I have highlighted the terms which talk about important aspects. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है तो मुझे अनायंस पे फोकस करना रहेगा, अनायन का चार्ज देखूंगा, जिसका ज्यादा चार्ज उसका कम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक एक करके ये सारे ऑप्शंस जज कर लेते हैं. नाउ इन सम एग्जांपल्स लाइक द वंस व्हिच आर देयर एट द बॉटम, आपसे एक्सपेक्टेड होगा बाय नोइंग दीज एग्जांपल्स कि ये कौन सा टाइप का सॉल्व है, पॉजिटिव सॉल्व है कि नेगेटिव सॉल्व है, एंड अकॉर्डिंगली कमेंट ऑन द ऑप्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नोटिस करना, नहीं नंबर ऑफ आयंस नहीं, चार्ज मैटर्स. चार्ज इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट हार्डी-शुल्ट्ज रूल वाज. ठीक है, लीस्ट कोएगुलेटिंग पावर, हाँ करेक्ट, लीस्ट कोएगुलेटिंग पावर विल बी Na plus. Al3+ will have the maximum coagulating power. Correct. Now, next notice करना, there is a concept called as gold number. Gold number of lyophilic colloids. Now, what do I mean by gold number? ठीक है, इसका ये context एक बार read करो. इसमें इनफैक्ट चलो रीड करोगे टाइम लग जाएगा, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ सिंपल सा. बेसिकली जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, ये हमने बोला था कि लेस स्टेबल होते हैं. ठीक है, जैसे गोल्ड का सॉल्व हो गया, ये लायोफोबिक कोलॉइड है, ये कम स्टेबल होता है. स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे तो ये कोएगुलेट कर जाता है. ठीक है, अब अगर मुझे मान लो इस गोल्ड के सॉल्व को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है फ्रॉम कोएगुलेटिंग बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वन मेथड दैट इज एम्प्लॉयड इज आई ऐड लायोफोबिक कोलॉइड्स टू इट. दो ये लायोफोबिक कोलॉइड्स जो रहते हैं, ये इस लायोफिलिक कोलॉइड, गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, एंड दिस लेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. So when electrolytes are added, they are not able to easily coagulate these lyophobic colloidal particles. Now, ये जो protective action है lyophilic colloids का, इसको quantify करा जाता है in terms of something called as gold number. Now, क्या होता है गोल्ड नंबर? इसका ये डेफिनेशन आप एक बार पढ़ोगे तो आपको शायद ही समझ में आएगा इन वन को, बट एक बार रीड करो क्या कह रहा है ये. नाउ अब आपने एक बार रीड करा तो अब समझना कि क्या कहना चाह रहा है. अगर मैं एक स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व लूं, ठीक है, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व जो होता है रेड कलर का होता है, 10 ml लूं, ठीक है, ये मेरा लायोफोबिक सॉल्व है. इसमें अगर मैं, ठीक है, एज पर दिस स्टेटमेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं, कैसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं? 1 ml of 10% NaCl solution.
ये अगर मैं इसमें ऐड करूं, then coagulation occurs, which increases particle size, and as a result the color of the sol changes, the color of the colloid changes. It becomes blue in color. Now अगर मुझे ये प्रिवेंट करना है, आई डोंट वांट दिस कलर चेंज टू हैपन, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रीमिक्स कर सकता हूं लायोफिलिक कोलॉइड. ये लायोफिलिक कोलॉइड इस लायोफोबिक कोलॉइड, गोल्ड कोलॉइड को प्रोटेक्ट करेगा. अब गोल्ड नंबर क्या कह रहा है, द मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड to be added that can prevent this color change is called as the gold number of the lyophilic colloid. तो यहाँ पर मैं प्रीमिक्स कर रहा हूँ, कितने मिलीग्राम्स प्रीमिक्स करूं ताकि इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इतने अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट का कलर चेंज ना कर पाए. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर, राइट. तो गोल्ड नंबर अगर ज्यादा होगा यानी कि ज्यादा अमाउंट में लगेगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यानी कि उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम रहेगी, राइट. प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है मतलब कम अमाउंट में ही लायोफिलिक कोलॉइड लगेगा, यानी कि उसका मिलीग्राम्स कम लगेगा, उसका गोल्ड नंबर भी कम लगेगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड. ठीक है. नाउ इसके ऊपर भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ये वापस से बुकलेट के सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप एक बार करोगे समझ में भी आएगा. Let's talk about the preparation of lyophobic colloids. Now, जैसा आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लायोफिलिक कोलॉइड्स तो कैसा है, सिंपल मिक्सिंग से फॉर्म हो जाते हैं, बट लायोफोबिक कोलॉइड्स को स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करना पड़ता है. देयर आर केमिकल मेथड्स एज वेल एज फिजिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में नोटिस करना, द मोस्ट कॉमन वन इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन. What is peptization? Basically एक केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा, उससे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. ठीक है. Now what we need to do is we need to convert that precipitate into colloidal sized particles. This is what is called as peptization. It's a process by which the large particles, they are converted into small colloidal dimensions particle. It is typically done via ultrasonic vibrations or vigorous shaking of the colloidal particles, the precipitate. Now as an example, ये जो FeCl3 और H2O का यहाँ पर हमने देखा रिएक्शन, वो ऑब्जर्व करना. FeCl3 को पानी में डालते हैं, इससे Fe3+ आयंस आते हैं, और वो Fe3+ आयंस जो हैं, राइट, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. नाउ वाया शेकिंग और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस वी ब्रेक दैट इनटू स्मॉलर कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स, एंड कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर क्या होता है, ये आयंस Fe3+ के आयंस एब्जॉर्ब होकर उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको वापस से कोएगुलेट नहीं करने देते. सो दिस इज वन सिंपल केमिकल बेस्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग colloids, lyophobic colloids. Now, नहीं, not really, or no. Next, notice करना, this is a physical method of preparing lyophobic colloids called as electrical disintegration or Burdick's arc method. This is specially used for creating मेटल कोलॉइड्स, मेटल सॉल्स, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, जो कोलॉइड्स हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उनका क्रिएशन इज डन बाय दिस मेथड. इसका सेटअप नोटिस करना कैसा रहता है. सेटअप इज समथिंग इन दिस मैनर दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइट, नॉट इलेक्ट्रोलाइट, देयर इज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड सॉल्व बनाना है. ठीक है. तो अब मैं गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स लूंगा and I will place them in or immerse them in a water bath.
Now I will deliberately keep the gold electrodes very close to each other and then provide potential difference. As a result, the gold rods between them, because they are very close to each other, result in formation of an arc. एक spark होगा, electric arc generate होगा. ठीक है, this is something which you might have also come across in general in life. जैसे अभी कोई plug point है, उसका switch on है और आप उसमें कुछ adapter या कुछ plug करते हो device, तो spark होता है. क्यों होता है? Is because the metal plates between which potential difference is quite high are at a very short distance between them. तो उस केस में क्या हो जाता है? Charge passes through air itself, or whatever that. Even in case of in this case, the charge passes through this water only. An arc is created. अब इससे क्या होता है? Because of this arc, the temperatures rise to very high values in that local region, in that vicinity of that arc. The temperatures are quite high. उससे metal के vapors form होने लगते हैं. जो metal rods है, उस metal atom के vapors form होने लगते हैं. And because the surrounding water is cold, those metal vapors, they start to again aggregate. They start to again coagulate with each other. But when they reach colloidal dimensions, we ensure that there are certain electrolytes already present in this system, which can then get absorbed over those surfaces and act as a protective layer and prevent further coagulation. Keep those particles in colloidal dimensions only. This is why we call these electrolytes as stabilizers also. Okay, they are there to ensure कि yes, coagulation नहीं हो, as well as colloid stable भी रहे. Okay, so this is a physical method called as Verdic's arc method. Then there is another physical method. This is typically used for non-metals. ये ऊपर वाला typically metals के लिए use होता था. ये वाला non-metals के लिए use होता है. जैसे मान लो मुझे सल्फर का सॉल्ट बनाना है या आयोडीन का सॉल्ट बनाना है, तो उसके लिए ये सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड यूज किया जाता है. नाउ लेट्स से सल्फर का सॉल्ट बनाना है, मतलब सल्फर इन वाटर का, तो वो डायरेक्टली तो नहीं बनता है क्योंकि सल्फर वाटर में सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 चम्मच सल्फर लिया, पानी में डाला और स्टर करा और सॉल्ट बन गया. नो, इट डजंट हैपन दैट वे. कैसे बनाते हैं सॉल्ट को, उसके लिए नोटिस करना, सल्फर को पहले अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं था बट अल्कोहल में सॉल्युबल रहता है. तो सल्फर को अल्कोहल में डाला, उससे क्या हो गया, उसका ट्रू सोल्यूशन बन गया. अब उस सोल्यूशन के हम लोग अंदर एक्सेस वाटर पोर कर देते हैं. वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है. क्यों? बिकॉज वाटर एंड अल्कोहल आर मिसेसेबल, सो दे मिक्स वेल विद ईच अदर. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब हम लोग वाटर को रिमूव कर देंगे, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, या वाटर को सॉरी अल्कोहल को रिमूव कर देंगे, अल्कोहल को इवेपोरेट कर देंगे. एंड जो सल्फर के पार्टिकल्स रहेंगे वो अब बिकॉज दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद वाटर मच, वो आपस में एक दूसरे के चिपकने लग जाते हैं, कोएगुलेट करने लग जाते हैं. एंड एज सून एज दे रीच कोलॉइडल डायमेंशंस, surface is generated. We ensure that there are certain amount of ions that are present which are adsorbed on the surface. ठीक है, small quantity में electrolytes रहते हैं, वो surface पे absorb हो जाते हैं on those colloidal dimensions sulfur particles, and as a result we get the sulfur salt. ठीक है, ये आपका एक और physical method हो गया in preparing colloidal particles. Now after this methods, एक important aspect रहता है in the preparation methods, which is also preparation of or purification of colloidal salts. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वापस reiterate कर रहा हूँ, that colloids की preparation में electrolytes important होते हैं, but they need to be present in controlled quantity.
ज्यादा अमाउंट में होंगे तो दे विल कॉज कोएगुलेशन. So in order to prevent that, we purify colloids by this method called as electrodialysis. Now this is something which happens inside our body also. Our kidneys, they purify blood and maintain blood as a colloid. That's a natural process that happens inside. This is something which I'm talking about happening externally and a colloid being maintained in the following manner. कैसा? एक ऐसे बैग में colloid को लिया जाता है जिस बैग का मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होगा, यानी कि कोलॉइड के पार्टिकल्स उसके बाहर नहीं जा पाएंगे, बट जो एक्सेस आयंस हैं, स्मॉल स्मॉल साइज के आयंस, वो उस मेम्ब्रेन के बाहर जा सकते हैं. एंड उसके अराउंड फिर यहाँ पे वाटर रहेगा, फ्लोइंग वाटर रहेगा, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रखा होगा, तो वो जो आयंस है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, एक्सेस आयंस. ठीक है, एंड यू कैन कीप द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ आयंस ओनली एज पर द requirement. ठीक है. Then you have a lot of applications of colloids around us. ठीक है, many examples of colloid around us. ये आप NCERT से रीड करोगे एक एक करके. कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं. ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले एग्जाम्स में. These are must. NCERT reading is a must. लाइन बाय लाइन पढ़ना और एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे. ठीक है, मेडिसिन में इनका यूज, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में इनका यूज. ठीक है, ये सब आपको सोप का क्लेंजिंग एक्शन जो है, ये सारे एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. एग्जाम्पल्स पढ़ के ध्यान में रखना इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. ठीक है, देन एक छोटा सा पार्ट टुवर्ड्स द एंड रहता है विच इज अबाउट लिक्विड टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स which are called as emulsions. ठीक है, हाँ, you are required to remember these examples. It is a must. Please understand, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, वो याद कर लो अपनी 10वीं क्लास के दिन, जहां पर तुम सब रट्टा मारने में महारथी हुआ करते थे, 90-95% बोर्ड्स में लेके आते थे. Get back into that mode and zone, especially for these chapters. Now, as I was talking about emulsions, liquid colloid होता है. इसमें दो टाइप के रहते हैं, oil in water, water in oil. And as per the name, you can understand, oil in water अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या होगा, oil DP रहेगा, water DM रहेगा. water in oil होगा तो इसमें oil DP रहेगा और water का DP रहेगा, oil का DM रहेगा. ठीक है. Now, in order to distinguish between these two types of colloids, there are certain tests that are designed and performed. Again, quite obvious to understand as well, right? कैसा रहता है dilution test? क्या होगा कि अगर oil in water का colloid है तो उसको हम लोग oil से dilute नहीं कर सकते, water से dilute कर पाएंगे. जो भी DM है उसी से dilute कर पाएंगे. water in oil type का colloid है तो उसको हम oil से dilute कर पाएंगे, water से नहीं dilute कर पाएंगे. ठीक है, that is dilution test. डाई टेस्ट कैसा होगा, मान लो अगर आपने कोई ऑयल सॉल्युबल डाई डाली, राइट, तो व्हाट विल हैपन इज दैट इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप कोलाइड, वो जो ऑयल सॉल्युबल डाई है वो पूरी इजीली फैल जाएगी एंड आपको एक यूनिफॉर्म कलर ऑब्जर्व होगा. बट अगर ऑयल इन वाटर टाइप का कोलाइड था तो वो डाई जो है ऐसे छोटे छोटे चंक्स में डिसॉल्व हो पाएगा, नॉट इन वाटर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट कैसा रहेगा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में ही सही. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐड करना है, ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो कोलाइड ही खराब हो जाता है. स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो उससे नोटिस करना ये वाले कोलॉइड की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और आयन सब कंडक्शन कर सकते हैं. बट वाटर एंड ऑयल टाइप के कोलॉइड में अगर हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्टिविटी खास कुछ बढ़ेगी नहीं, बिकॉज दोज electrolyte ions will get dissolved in water, but then the water is not in a continuous phase, it is in discontinuous phase. ठीक है, right? So ये आपका colloids and colloids से related concepts थे. ठीक है, समझ में आई है? हाँ, क्या पूछ रहे हो गिरीश? डाई टेस्ट, डाई की मिसिलिबिलिटी पे डिपेंड करेगा. ऑफ कोर्स you have an oil soluble dye, typically you take that.
ठीक है, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस? चलो ग्रेट. अगेन रीआइटरेटिंग, बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना. यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू अटेम्प्ट दिस चैप्टर. ठीक है, नोट्स या आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट एनसीईआरटी भी रीड करना है. ठीक है, चलो, ऑल राइट. हाँ सर रेडियो एक्टिव थ्योरी बाद में करनी है खुद से, आपका लेक्चर रहेगा? वैसे तो अगले वीक है लेक्चर, लाइक आई हैव गॉट अ टाइम टेबल. अगले Okay. वीक एक लेक्चर है, उसमें अगर रिक्वायर्ड होगा तो फिर मैं एक ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला भी कवर कर दूंगा. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सर. Bye. Hi, sir. Thank you, sir.